کے نوجوانوں سے مختلف اور بلند تر دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے بلند افکار، اقوال، زیریں اور اس کی نصیحتوں کے مطابق زیادہ تر نوجوان نسل ہی تھے۔ علامہ اقبال نے اپنے بیش قیمت کلام میں نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ اسی لیے دی تھی کہ ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ہمارے نونہالوں اور نوجوانوں میں وہ تمام جواہر موجود ہیں جو ایک شاہین میں دیکھے جاتے ہیں۔ شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ قابل صد احترام مہمان خصوصی، عزت مآب جناب صدر، مکرمی و محترمی استاد کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، 9 نومبر 1877 کو علامہ محمد اقبال کے گھر میں جلوہ افروز ہوئے۔ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم مکمل کی اور 1899 میں فلسفے میں ایم اے کیا۔ مغرب کے سیاسی، تہذیبی، معاشرتی اور روحانی حالات کا گہرا مشاہدہ اور مطالعہ کیا اور مشرق کو اس کی بدحالی اور خاص طور پر مسلمانان ہند کو ان کی کمزوریوں اور خامیوں پر خبردار کرتے ہوئے اپنی شاعری کے ذریعے بالخصوص نوجوانوں کو علم و عمل کی ترغیب دی۔ کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ معزز حاضرین کرام، ان کی نظموں میں ہمیں حب الوطنی کی نمایاں تصویریں نظر آتی ہیں۔ خاندانوں میں سے ایک خاندان سیالکوٹ میں آ کر مقیم ہوا۔ اس نیک اور خدا پرست خاندان کے ہاں ایک بیٹا محمد اقبال پیدا ہوا۔ جناب صدر، وقت گزرتا گیا اور یہ بچہ بڑا ہو گیا۔ شاعر تھے اور تحریک پاکستان کے اہم رکن بھی تھے۔ اس وقت مسلمانوں پر بڑا کڑا دور تھا۔ آپ نے نہ صرف اپنے مضامین بلکہ اپنی شاعری سے بھی مسلمانان ہند میں نئی روح پھونکی۔ آپ نے اپنی شاعری ادا کیا۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔ جناب صدر، ہندوؤں سے بالکل ہٹ کر ہے، اس لیے ان کے لیے ایک الگ وطن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جناب صدر، اقبال حکیم الامت اور شاعر مشرق کے نام پر لب گشائی کا موقع ملا ہے، وہ ہے علامہ اقبال کی زندگی اور افکار۔ جناب صدر، مفکر اسلام، شاعر مشرق اور حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون ہوگا جو واقف نہیں ہوگا؟ جانا پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانا پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ جناب صدر، یہ مسلمانوں کو ان کے عظیم ماضی اور روشن مستقبل کی طرف رہنمائی دی۔ انہوں نے انسان کو اپنی ذات کی عظمت کر سکے۔ علامہ اقبال نے قوموں کی دفاع اور بقا کے لیے ان کی ایمانی قوت کو اساسی حیثیت دی ہے۔ آپ کے نزدیک مادی کمزوری پر روحانی طاقت کے ذریعے غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایمان اور یقین کے اس فضل کے لیے تشریف لاتی ہیں سیدہ ہادیہ بطول، جن کا تعلق مہر علی گرلز سیکنڈری بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ صدر علی وقار علامہ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی کا دور تھا۔ پر سیر خیزی بھول چکا ہے، نہ ملا کی وہ ازا رہی، نہ مجاہد کا وہ گرم شعلہ لہو رہا، واغث تیری قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی ورحمت ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ صدر عالی مرتبت، دنیا آب و گل میں ابتدائے آفرینت سے ہی ایسے یکتائے زمانہ نفوس آتے رہے ہیں جنہوں نے اپنے خداداد صلاحیتوں، تفکر، تدبر اور بصیرت کے طفیل تاریخ ساز کردار ادا کیا اور یوں اپنے لسانی کردار سے ایسی تاریخ رقم کر دی کہ تاریخ آج بھی ان پر فخر کرتی ہے اور تابت فخر کرتی رہے گی، کیونکہ ایسے نابغہ روزگار افراد صدیوں بعد جلوہ گر ہوتے ہیں اور بجا طور پر اس مقام و مرتبے کے تاجور ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, से होता है चमन में दीद और पैदा। बावर कराया कि वो कौम का सरमाया है और मुसलमानों की ज़बों हाली में निजात दहिंदा का किरदार अदा किया। आपका मौजूद सुगन मुसलमान नौजवान था, चाहे वो किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखता हो। जैसा कि आपने फलस्तीन के बारे में अंग्रेजों को ललकारा है, हाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक है, हाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पे हक क्यों नहीं अहले अरब का। हालो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की जिंदगी और अफकार। जनाबे सर, जैसा कि मेरी साथी तालिबा ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की जिंदगी और अफकार पर बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया है, मेरा इन सब से सिर्फ एक सवाल है कि क्या आज का नौजवान इकबाल के ख्वाबों की ताबीर बनकर इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बन रहा है? क्या इकबाल के शाहीन की वो सारी सिफात आज के नौजवानों में मौजूद हैं? क्या वो मुल्क की इज्जत और नामूस के लिए के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? नहीं। और इनकी शख्सियत को इल्मी और फिक्री हलकों में बेहद कदरे निगाह से देखा जाता है। नईम अकरम कुरैशी साहब की तहरीरों में कलाम इकबाल के पैगामात की झलक नुमाया होती है। इनकी किताब में मज़ामीन में इकबाल की शायरी और अफकार पर गहरी रोशनी डाली जाती है। इनका मकसद नौजवान नस्ल को इकबाल की नजरियात से रोशनास करवाना है और इन्हें अपने अंदर खुदी और एतमाद पर पैदा करना है। शुक्रगुजार हूँ हमदर्द फाउंडेशन की मैनेजमेंट का कि इकबाल के हवाले से मुझे याद रखा इन्होंने और खसूसी वक्त अनायत फरमाया इज़हार ख्याल के लिए। शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद अला रहमा और उनकी दुख्तरे नेक अख्तर मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा इस अजीम मकसद के लिए कोशां हैं। हकीम साहब की शहादत के बाद बड़ा चैलेंज था कि उनके अफकार और नज़रियात को लेकर आगे बढ़ा जाए और वो तसलसल कायम रखा जाए। बड़ा मुश्किल था ये मरहला, कई नशेब व फराज भी आए, लेकिन मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा ने हिम्मत नहीं हारी और वो एक लगन के साथ, एक जज्बे के साथ अपने वालिद ग्रामी के इस अजीम मिशन को लेकर आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर जिन बच्चों ने इज़हार ख्याल किया हमदर्द नौनिहाल असम्बली के, सबने अपनी अपनी गुफ्तगू में एक ना एक पैगाम जरूर इकबाल के हवाले से दिया है। गुजारिश है आपसे कि जिन जिन स्कूलों में तराना नहीं पढ़ा जाता या मॉर्निंग असेंबली नहीं होती या इकबाल की शुरा या आफाक दुआ लब पे आती है दुआ नहीं होती, आप समझ लें कि आपका वो सेशन मुकम्मल नहीं है। दुनियावी तालीम तो आप ले रहे हैं, लेकिन अगर फिक्र इकबाल जो कुरान करीम की तालीमात के अंदर घुंदी हुई है, अगर वो नहीं है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नहीं है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इन दो मिसलों पर आप गौर करें तो सारी कहानी समझ आती है। लेकिन एक साजिश के तहत इकबाल को माइनस किया जा रहा है। जो बाशऊर तबका है वो इसको समझता है कि इकबाल को क्यों खारिज किया जा रहा है, क्योंकि इकबाल फिक्र की आजादी की बात करते हैं, फर्द की बेदारी की बात करते हैं, इंसान को जागने की तरगीब देते हैं। उनका एक शेर है, बल्कि पूरी नज्म मैं आपको सुना सकता हूं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कुंजश के फरो माया को शाही से लड़ा दो। कुंजश के फरो माया क्या होती? छोटी सी चिड़िया जैसे खड़ी रहती है, कभी आपने टेलीविजन में या किसी डॉक्यूमेंट्री में देखी, वो छोटी सी चिड़िया होती है, ऐसे खड़े होके वो उड़ती रहती है। कुंजश के फरो माया को शाही से लड़ा दो, यानी कमजोर तरीन भी उठ के ताकतवर के सामने खड़ा हो जाए। तो जो हमारे यहाँ इक़्तिदार में तबकात हैं या दुनिया में जो मुसलमान
कुव्वतों के मुखालिफ हैं, वो कब ये चाहते हैं कि कमजोर उठ के हमारे मुकाबले में आ जाए। तो इसलिए इकबाल पर ही पाबंदी लगा दें, ना वो बच्चे बात सुने, ना वो यूथ वो बात सुने, और ना वो इकबाल का पैगाम फ्लरिश होकर आगे जाए। कुंजश के फरो माया को शाही से लड़ा दो। फिर आगे अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैं नाखुश और बेजार हूं मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। अब ये जो हमने मार्बल की मसाजिद बना दी हैं हरमैन शरीफैन में भी और हर इस्लामी मुल्क में मार्बल की खूबसूरत मसाजिद तो हैं, लेकिन नमाजी नहीं है। वो जज्बा नहीं है जो इकबाल देखना चाहते थे। जो इकबाल मर्द मोमिन, मर्द हक, मर्द खुद आगाह बनाना चाहते थे, वो बनता नजर नहीं आता। इसकी वजह क्या है उस्ताज़ा कराम जानते हैं, लेकिन बच्चों को बताना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि हमने दीन से दूरी इख्तियार की हुई है। अभी यहाँ पे शेर गालिबन स्पीकर साहिबा ने पढ़ा कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में। ये देखें कि ये वो अक़दार है हमारी जो इकबाल ने एक एक मिसरे में प्रो कर दी है बहुत पहले, कि दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पा मर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ये ताजे सरेदारा। ये जो कामिल लोग होते हैं ना, इकबाल जैसे लोग, कायदे आजम जैसे लोग, शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद जैसे लोग, कि जो जानते हैं कि इस कोरे कागज पर क्या लिखना है, तालीम पर उनकी सारी जिंदगी तवज्जो रही। इकबाल का यह कहना है कि तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर, तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हमाला हो तो मट्टी का एक ढेर। तालीम वो ताकत है, वो कुव्वत है, वो वेपन है जिसके जरिए आप दुनिया के मनाजिल तय कर सकते हैं, मसाइल हल कर सकते हैं, अपने आप को मोल्ड करके हालात का मुकाबला कर सकते हैं। तो तालीम पहली तरजीह। इकबाल ने भी बात की, और फिर हम चूंकि शहीद पाकिस्तान के इस फोरम पर बात कर रहे हैं, तो शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद और उनकी दुख्तरे नेक अख्तर इसी मिशन पर तालीम के फरोग के लिए और बिलखसूस नौजवान नस्ल के लिए जो ये खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, ये बहुत बड़ी काबिल कदर बात है। तो बहुत सी बातें इस ज़मन में कही जा सकती हैं, कुछ मैं इस्लाह के हवाले से भी बात करता हूं क्योंकि एक मौका बना होता है। अक्सर बच्चे और बड़े भी प्रोनाउंसिएट नहीं करते सही तरह से। इलामा इकबाल, इलामा नहीं, वो तो अलिफ ये लाम वो मानी और बन, अल्लामा इकबाल, ठीक है, एन से, तो अल्लामा इकबाल कहना चाहिए। फिर कौमी तराने के दौरान अक्सर लोग अगर खड़े होते हैं तो वो दिल पर हाथ नहीं रखते। ये एक अहद है, कमिटमेंट है। हर शेर के अंदर तराने में अबुल असर हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने हर मिसरे के अंदर एक पैगाम दिया है। तो वो मिसरा हमारी कमिटमेंट भी है, हमारी दुआ भी है, हमारा आइडिया भी है। तो हम उस कमिटमेंट पर जब दिल पर हाथ रखकर इरादा करते हैं या अपनी नीयत जाहिर करते हैं तो वो ज्यादा पुख्तगी का इजहार होता है। चाहता हूँ, इकबाल ने 1930 का भी जिक्र हुआ कि इकबाल जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए लंदन में, तो जावेद इकबाल ने उनको खत लिखा था। खत भी कब दिनों के बाद मिलता था ना, आजकल टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप है और कई कम्युनिकेशन के जराए। खत उन्हें मिला, उसमें उन्होंने फरमाइश की थी कि मेरे लिए वहां से हारमोनियम लेकर आए लंदन से आते हुए, जैसे बच्चे ख्वाहिश करते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने जो हारमोनियम जावेद को भेजा, उस वक्त जावेद थे जो बाद में जस्टिस जावेद बने, जस्टिस जावेद इकबाल, और वो इस बात का इतराफ करते थे। 2 दफा उनका लेक्चर मैंने बराह रास्त ओपन यूनिवर्सिटी में सुना। उनका ये कहना था कि अल्लामा ने जो हारमोनियम भेजा वो आज भी मेरे कानों में रस घोलता है। तो उन्होंने ये हारमोनियम, ये नज़म भेजी थी उन्हें,
तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर, उठाना शीशा गराने फरंग के एहसास, सिफाल हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो शेर यहाँ पढ़ा गया, मैंने इसको लिंक किया। और मुझे ये भी एजाज हासिल है कि एक इकबाल डे के हवाले से प्रोग्राम में हकीम सईद अला रहमा जिंदा थे, तो प्रोग्राम के अख्ताम पर उन्होंने उठ के मुझे गले लगाया और कहा कि नईम आप इकबाल के शाहीन हैं, आपने मुझे भी इकबाल समझाया है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात थी, वो मेरे लिए जुमला सरमाया है और मैं आज तक हकीम साहब की उस बात पर कायम हूं कि उनके फोरम में भट्टी साहब गवाह हैं। अगर मैं मुल्क से बाहर हूं तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो ना मैं शूरा का इजलास छोड़ता हूं और ना ही असेंबली का सेशन मैं मिस करता हूं। बहुत से और प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम भी मैं फॉरगो कर देता हूं, लेकिन शहीद पाकिस्तान का ये फोरम चूंकि फिक्री एतबार से कौमी और मिली खिदमत है, इसलिए इसमें अपना अपना हिस्सा हर शख्स को डालना होगा। तो जब भी मैंने नज़म सुनाई ना, उसमें एक शेर ये भी है कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, और दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। तो मुसलमान का खसारा क्यों हो? जब हम शऊर रखते हैं, जब किताब खुदा हमारे पास है, दुनिया के सबसे बड़ी थ्योरी कुरान की सूरत में हमारे मौजूद है, और दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रैक्टिकल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में मौजूद है, और उसके बाद तसलसल है। शहीद पाकिस्तान ने भी सारी जिंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए सादगी के साथ गुजारी। लिबास में सादगी, गुफ्तगू में शाइस्तगी, अखलाकियात के साथ इंसान दोस्ती, इंसानी खिदमत, तालीम का फरोग, दूसरों के काम आना, ये सारे वो औसाफ हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा और शमाइल उला से हमें मिले हैं। और ये नुक्ता जिस दिन आप समझ गए, बात तरह लंबी हो गई, जिस दिन आप ये नुक्ता समझ गए तो वो फिर ऐसा दिन होगा कि फिर समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, नापैद तेरे बहरे तखय्युल के किनारे, और पहुंचेंगे फलक तक तेरी आंखों के शरारे। लेकिन करना क्या है? इकबाल ताकीद भी कर रहे हैं कि पहुंचेंगे फलक तक तेरी आंखों के शरारे। अपनी जात में ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। जब इंसान अपने अंदर झांक कर देखता है, अपनी जात की शनाख्त करना जानता है, तो फिर उसके लिए आसान हो जाता है दुश्मन से मुकाबला भी, फिर उसके लिए आसान हो जाता है अपनी राह अमल ढूंढना भी। तो फिर समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, वही आसमान से गर्दों सितारे, नापैद तेरे बहरे तखय्युल के किनारे, पहुंचेंगे फलक तक तेरी आंखों के शरारे। तामीर खुद ही कर असर आहे रसा देख, बेताब न हो मारकाए बीम और रजा देख, और खुर्शीद जहां ताब की जो तेरे शरर में, आबाद है एक ताजा जहां तेरे हुनर में, जचते नहीं बख्शे हुए फिर दौस नजर में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में। ऐ पैकर गिल कोशिश पैहम की जजा देख, बेताब न हो मारकाए बीमो रजा देख। नई मंजा ने एक गलती की है कि आबो गुल कहा है, पानी और फूल नहीं, आबो गिल है, गिल मिट्टी को कहते हैं। तो आबो गिल का जगह जगह तस्करा है इकबाल की शायरी में, पानी और मिट्टी। ये एक फारसी में भी इकबाल ने कहा कि जहां राजा यक्काबो गिल आफरीदम, तो ईरान तातार जंग आफरीदी, मनस खा के पौलाद नाब आफरीदम, तो शमशीरो तीरो तफंग आफरीदी। ये पानी और मिट्टी का ये जहान है, इसे तुमने लड़ाई झगड़ों के लिए वक्फ कर दिया है। मैंने लोहा इंसान की बका के लिए, उसकी सहूलत के लिए बनाया था, लेकिन तूने यह इंसान क्या किया? तूने तीरो तफंग बना दिए, तूने तलवारें और खंजर बना दिए। तो ये इकबाल के यहाँ सवाल होता है, आबो गिल है, आबो गुल नहीं। गुल फूल को कहते हैं, गिल मिट्टी को कहते हैं। मैं इन्हीं मारूजात पर बारे दिगर हयात मोहम्मद भट्टी साहब का, हमदर्द मैनेजमेंट का, मैडम सादिया राशिद का शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ آپ نے بہت خوبصورت اقبال ڈے سیلیبریٹ کیا، اور میں کچھ نہ کہوں اور چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے، وما علینا الا البلاغ۔ ان کے اعزاز میں بھی آج ایک شیل دی جا رہی ہے، تو میری درخواست ہے کہ آپ اوپر اسٹیج بھی تشریف رکھیں، آپ نے اعزاز میں شیل پیش کی۔